So let's start with David Hume's skepticism. हमने कुछ एक चीज़ें ह्यूम के बारे में ऑलरेडी कर ली हैं. हमने उनके इम्प्रेशंस और आइडियाज़ से स्टार्ट किया था, फिर कंसेप्ट ऑफ सेल्फ उसको एक्सप्लोर किया था और देखा था कि ही रिजेक्टेड इट. सेल्फ उन्होंने नहीं माना. अब ये आगे चलेगा एंड टुडे वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मच ऑफ हिज philosophy. It goes without saying that you can spend your entire life with David Hume. These are scholars of that level. But he is a philosopher of that level. You can spend not your life on him. You can spend your life on one of his texts, and this is true for Plato, Aristotle, Ghazali, everyone. This is not just true for him. Like you can take up causality, for example, and spend your life with that. But our purpose here is to have a general understanding of what Hume is saying. So we are not going into details, but we are having detailed enough discussions. I have been saying that Hume was an empiricist. We have been saying that, but I have added to that. In him, we find empiricism reaching its logical climax. एम्पिरिसिज्म को परवान अगर चढ़ाया किसी ने तो डेविड ह्यूम ने. हमने इसका देखा कि हाउ ही हैड दिस अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड. हमने देखा लॉक ने काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए. बर्कले ने उन कॉम्प्रोमाइज़ को रिजेक्ट किया और लेकिन तब भी एक कॉम्प्रोमाइज़ किया. सो ह्यूम इज़ गोना मेक इवन बर्कले मोर कंसिस्टेंट. So Hume is not going to accept anything which is not within the domain of experience. And it's because of that he refuses everything from God to self. And his next casualty is the relation between cause and effect. That's his next casualty. Causality becomes casualty. So you have to understand हमारा जो कॉजेलिटी का तस्वुर है उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं. एक हमारा कॉजेलिटी का तस्वुर है नेसेसरी रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. दिस इज फिलोसॉफिकल कंसेप्शन ऑफ कॉजेलिटी. जैसे आप कॉजल आर्ग्यूमेंट ऑफ गॉड आर्ग्यू कर रहे होते तो आप इसी कॉजेलिटी की बात कर रहे होते. समथिंग नेसेसरीली फ्लोइंग फ्रॉम समथिंग एल्स. ये एक तस्वुर होता है एंड यूजुअली हम इसी तस्वुर को लेकर अपनी रियल लाइफ में भी चलते हैं. लेकिन जब साइंस कॉजेलिटी के बारे में बात कर रही होती है वी फॉरगेट एंड मोर सो बिकॉज बेसिक प्रिंसिपल्स का स्टडी नहीं होता मॉडर्न वर्ल्ड में. होता है बट ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती कि व्हाट डज इट मीन टू से सर्टेन थिंग्स. Things are taught in classrooms as if they are answering the why of the question while they are answering the how of the question. Uh, a good physicist, a good uh, biologist or a chemist, they would know this. They would know this difference. Most often when we read things in science, we tend to think that science is talking about this necessary causality. But that's not true at all. Science doesn't. Science in its essence, in its true science, जो real scientists who have understood their science, what they're doing, they understand it. Even if they would be atheists or Muslims or Christians, or Muslim scientist is a rarity, but then they are there. Science talks about possibility actually. So the relation between cause and effect is a possibility in science, which science tries to explore. So we have these two types of causalities. But we'll be concentrating more on the philosophical view of causality, necessary causality. David Hume rejects it completely. To start with, he says it cannot be a priori. A priori concept ये हो नहीं सकता. Hume did not find it a sound alternative because before actual appearance, a person would not be able to deduce any effect at all. क्यों किया उन्होंने a priori को reject? Because of this reason. देखिए हमारे पास फायर और बर्निंग का दो इवेंट्स हैं. हम इनमें कॉजल रिलेशन एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि फायर बर्न्स. ह्यूम यहाँ आर्ग्यू कर रहे हैं कि बिफोर एक्चुअल एक्सपीरियंस
नहीं हम एस्टैब्लिश कर सकते थे, ये हम बात ही नहीं कहते। थिंक, रिमूव ऑल नॉलेज अबाउट फायर फ्रॉम दिस यूनिवर्स, वी हैव नेवर एनकाउंटर्ड फायर। आपके सामने अब आग रख दी गई, देयर इज नो रीजन फॉर यू टू थिंक दैट इट विल बर्न। ह्यूम आर्ग्यूज, ह्यूम सेज इट्स कस्टम, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं। अदरवाइज जब फर्स्ट एनकाउंटर विद फायर रहा होगा उस टाइम पे हम नहीं कहते ये। एंड अगर हम राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम अक्रॉस ए न्यू थिंग, just new, brand new, we haven't seen it ever before, uh, and I let's call it like um, anything, we call it pen. So this pen bites, okay? Can we establish that with any amount of reasoning without actually experiencing whether it bites or not? We cannot establish it at all because we are for the first time experiencing it. So Hume argues no amount of reasoning, no amount of argument can ever establish that fire has the capacity of burning unless and until there is an experience of it, and he is not wrong. Similarly, relations cannot be derived from deductions. It's the subject of inductions actually, and only on the basis of experience that we can arrive at causal relationships. So a priori reject हो गया. दूसरा, can we demonstrate causal relationships? ह्यूम सेज नहीं, ये भी नहीं कर सकते हम, कि हम रिलेशन ऑफ कॉजैलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट भी नहीं कर सकते। ह्यूम गिव्स एन एग्जांपल दैट वी कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट दैट फूड, फॉर एग्जांपल, फूड इनवेरिएबली प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये हम नहीं डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते। डिमॉन्स्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में पॉसिबल है। वाई? बिकॉज मैथमेटिक्स में ही सिर्फ रिलेशंस, आइडियाज, दे आर इनवेरिएबली रिलेटेड टू ईच अदर। सो 3+3 = 6, ये नेसेसिटी से ड्रिवन है। लेकिन उसको भी फिर वो आर्ग्यू करते हैं ह्यूम एल्सवेयर कि ये एक्चुअली कॉजल रिलेशन नहीं है। 3+3 डिड नॉट कॉज 6, 3+3 इज 6, इट्स जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग, यू हैवंट सेड एनीथिंग न्यू। 6 डिड नॉट एड एनीथिंग टू आवर इंफॉर्मेशन, it was it's not synthetic statement, it's an analytical statement. We would understand synthetic and analytic in Kant's philosophy, and once you do that you have really learned something good in your life. अब बहुत कुछ उसको उससे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। सो ह्यूम फॉर नाउ सेज कि ये सिर्फ मैथमेटिक्स में पॉसिबल है, तो इसकी वजह से लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ऑल्सो अप्लाइज ओनली वेयर, मैथमेटिक्स की दुनिया में। रियल लाइफ में देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इफ यू से फूड मे नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। So when you say food may not provide nutrition, we also know it from our experience that we can make that statement without contradicting this statement that food necessarily provides nutrition. So Hume is also right here. Okay, हम नॉलेज का एक तरीका परखने का ह्यूम के लिए, जनरली पूरे फलसफे के लिए, ये है कि it does not contradict. सही नॉलेज would never contradict. तो वो कह रहे हैं कि जब when we make a statement like food may not provide nutrition, we are not contradicting the statement food invariably provides nutrition. तो यहाँ पे भी demonstration भी हो गया, like that's also done. But what about observation and experience? इसके बारे में क्या है? The notion of causality is derived from experience. As a part of our common experience, हम क्या नोट करते हैं? हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट्स, दे बेयर ए रिलेशनशिप विद ईच अदर। एक पहले होता है और इमीडिएटली उसके बाद वो इनवेरिएबली होता रहता है, हमेशा एंटीसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट का रिलेशन रखते हैं एक दूसरे के साथ। द बॉटल दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, उसको धक्का दिया और वो गिर गई, ये हमेशा ऐसे ही हुआ। So Hume analyzes this invariable relationship of cause and effect. And what does he say? He says कि sensory experience does not establish the invariability of causal relation. ये sensory experience से नहीं है। हम जब ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी डू नॉट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ अ फोर्स इन द कॉज जो इन्वेरिएबली इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। हमने देखा धक्का मारा, उसके बाद देखा कि बॉटल गिरी, हमने ये नहीं देखा कि इसकी वजह से वो गिरी। दिस इज समथिंग वी पुट इनटू द observations. The facts of the case are only this, that there was a push and there was this rolling down of the bottle. We do not know this caused that. It is nothing more than the relation of antecedent and consequent. When we observe objects for the first time,
उस वक़्त फिर से हम ये नहीं कह सकते थे। ये तो हमने कस्टम की वजह से देखा है कि जब भी धक्का मारा बॉटल गिरी। अदरवाइज़ फर्स्ट टाइम अगर हमसे विदाउट एक्सपीरियंसिंग ये कहा जाता है कि अगर बॉटल को धक्का देंगे तो ये गिरेगी क्या? वी वुड नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ह्यूम आगे कहते हैं कि इनवेरिएबिलिटी इज़ नॉट प्रूव्ड बाय इंटरनल एक्सपीरियंस आल्सो, कि ये हमारे अंदर है कहीं पे जहाँ से हम इसको देख लेते हैं। तो ये ना, जब हमने हिंदू फ़लसफ़ा पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक अलौकिक प्रत्यक्ष की बात की थी, दैट देयर इज़ समथिंग इनसाइड अस जो हमको दूसरे का इल्म दे सकता है। तो उसको भी ये रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं जब मैं अपने अंदर देखता हूँ, ये हमने इससे पहले बात की है कि जब हम अपने अंदर देखते हैं तो क्या दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता। I see nothing more than various ideas that arrive, they associate, they get dissociated, whatever. There is no invariability in our thoughts. ये भी सही नहीं है। देखिए, लेकिन कैंट में बड़ा इंटरेस्टिंग है, ही एक्सेप्ट्स कि जो हमारे अंदर विल होती है, अब यहाँ पे अब ये बहुत ज़रूरी है समझना, बिकॉज दिस विल लेट अस आंसर द क्वेश्चन वेदर कैंट वाज रियली अ स्केप्टिक और नॉट, एंड you would be able to understand and appreciate my positions as well if you understand this point. Kant says, sorry, Hume says, that ये जो हमारे अंदर will पैदा होती है, it does cause different body parts to move. तो जो पूरा अभी तक एडिफिस खड़ी कर रहे थे वो डिस्ट्रॉय होगी। माना ना इन्होंने कॉजेलिटी को, लेकिन समझिए क्या कह रहे हो। कैंट, ये ह्यूम, सॉरी, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद इमैनुअल कैंट कि even if I want to say Hume, I say Kant. पर कोई बात नहीं, he's the next philosopher we are going to study. So in even in this case where Hume accepts कि हमारा अंदर का वॉल्यूशन, हमारा विल, ये हमारी बॉडी पार्ट को मूव करता है, he says our awareness is limited to either act of volition and to the actual movement of body. हमको क्या पता है? हमको फिर से सिर्फ यही दो चीज़ें पता है कि I willed and then the hand moved. I do not know whether how did it happen that my thought of it, my will moved it. I do not know how does that happen. We do not come across the presence of any force whatsoever which we can see and perceive that this is how my will made me move my hand. यहाँ पे फिर से वो सटल डिफरेंस समझिए कि ह्यूम इज नॉट डिनाइंग कि ये उसकी वजह से नहीं हो रहा. He is actually not denying the causality. He is here, what is he saying? He is actually saying the causality cannot be established. He is simply proving कि invariable relation हम volition और activity में साबित नहीं कर सकते. I feel it. अब इसको ये जो ये चीज़ है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, everyone says A is right and I checked it when I saw it, A was not right. So A is not right every time. एक तो ये है. दूसरा कंक्लूजन इसी ऑब्जर्वेशन से ये भी निकल सकता था कि आई वॉज नॉट लुकिंग एट ए. सो ह्यूम इज द काइंड ऑफ पर्सन हु इज नॉट सेइंग आई एम रॉन्ग हियर. व्हाट ही कुड हैव सेड, एंड वी विल सी कैन डूइंग इट, he could have given up on empiricism here and said कि okay, I know that there is causality here, इस एक मामले में causality है और ये established through some other source of knowledge हो रही है. But he was a true empiricist. He did not accept that. His ground, his rock solid जिस पे वो खड़े हैं वो empiricism है. तो इस वजह से वो ये नहीं conclude करेंगे कि there is some other source of knowledge. Based on this only true source of knowledge, causality cannot be established. He is very consistent here. But he could have said कि okay fine, I know volition से act हो रहा है, so that means there is some other source of knowledge too. But he did not do it. Then what is the basis of causality? हम क्या बेवकूफ़ है सब लोग? कॉज़ैलिटी किए जाते हैं. ह्यूम आंसर कहते हैं कि इसकी बेसिस हैबिट है, कस्टम है. हमारा जो माइंड है इसमें एक हैबिट डेवलप हुआ होता है ऑफ एक्सपेक्टिंग अनदर इंसिडेंट ऑन द ऑकरेंस ऑफ सम इवेंट. इसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है.
बिकॉज नो अमाउंट ऑफ रीजनिंग कैन एस्टेब्लिश ऐसा कोई रिलेशन. इट इज बिलीफ इन कॉजल रिलेशनशिप. और ये बिलीव एक लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है. बट अगेन, it is because he is a staunch empiricist he is saying this, or else he could have said that psychological necessity is also a source of knowledge. Yeah, if you remember, if there's a probably would remember it. um, I said one of the arguments for God can be made that they uh, the human urge for justice, that we want justice to happen, and that necessitates God to be present. तो वो किस बेसिस पे आर्ग्यू किया जा सकता है कि अगर हम इस साइकोलॉजिकल नेसेसिटी को एक सोर्स ऑफ इल्म माने कि हम इंसानों के अंदर ये फीलिंग है और ये फीलिंग सही है, ये फीलिंग नेसेसिटेट करती है कि खुदा हो. ये जो रिलेशन है कॉज और इफेक्ट के बीच, ये सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन का है, ये नेसेसिटी का नहीं है. तो जब आप ए कॉजेज बी कहते हैं, आपको एक्चुअली कहना क्या चाहिए था, बी इज फॉलोड बाय ए. दैट्स ऑल यू शुड हैव सेड. Sorry, A causes B, then A is followed by B. You cannot even say that B necessary follows A. वो भी नहीं कह सकते आप. सिर्फ आपको इतना पता है कि A is followed by B. तो ये कॉजल रिलेशन क्या हुई, ये सिर्फ एक फैक्चुअल रिलेशन है, ये साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है, ये लॉजिकल रिलेशन नहीं है. सो वी कैन डिनाई इट विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन. अब अगर ये फैक्चुअल है तो कॉज और इफेक्ट के बीच की जो रिलेशन है ये कंटिंजेंट है, नेसेसरी नहीं है. कहने का मतलब इट्स सब्जेक्ट टू चेंज. इट ओनली ऑकर्स व्हेन देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस दैट आर फुलफिल्ड. तो फर्दर ये जब कॉजेलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, ही एक्सप्लेन्स इट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही कॉल्स लॉ ऑफ एसोसिएशन. जब हम फ्रीक्वेंटली कॉज और इफेक्ट को, किसी पर्टिकुलर चीज़ के इफेक्ट को बार बार सक्सेशन में देखते हैं, तो हमारे माइंड में देयर हैपन्स ए कॉन्जुगेशन ऑफ आइडियाज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. एज अ रिजल्ट, जब भी हमारे अंदर इम्प्रेशन ऑफ कॉज होता है, इम्प्रेशन हम पिछले सेशन में देख चुके हैं, इट रिकॉल्स टू आवर माइंड द आइडिया ऑफ एन इफेक्ट. इसकी वजह से द एक्सपेक्टेशन ऑफ इफेक्ट ऑन द ऑकरेंस ऑफ कॉज that takes place inside our mind. So what is it, how is it happening? Because of a habit, not due to necessary connection between cause and effect. It's because of this relation Hume asserts that, and I quote, necessity exists in our mind, not in the nature, end quote. Hume further observe करते हैं कि हम we may perceive two events that seem to occur in conjunction, yet there is no possibility, there is no way for us to know the nature of the conjunction once again. जैसे वॉल्यूशन से हम अपनी विल से अपने हैंड को मूव करते हैं, कहते हैं इतना तो हमको पता चल गया कि ये इससे हो रहा है, yet ये कैसे हो रहा है हम ये नहीं कह सकते. और यहाँ से शुरू करते पूरा ही वो कॉजेशन को डिनाई ही करते हैं. कहते हैं कि हम सिर्फ अज्यूम करते हैं वन थिंग कॉजेज अनदर. इट इज़ जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट वन थिंग डज नॉट कॉज अनदर. ये भी एक पॉसिबिलिटी इक्वली हो सकती है. अब ये देखिए, इसका रिलीजन पे इम्प्लीकेशन है. रिलीजन सजेस्ट क्या करता है कि वर्ल्ड ऑपरेट्स ऑन कॉज एंड इफेक्ट, एंड देयर मस्ट बी देयर फॉर अ फर्स्ट कॉज, नेमली गॉड. ह्यूम के वर्ल्ड में कॉजेशन इज एज्यूम्ड, but it is ultimately unknowable. Therefore, we can never know the first cause. ये एक साउंड क्रिटिसिज्म है कॉजल आर्ग्यूमेंट की. इसको बाय एंड लार्ज फ़लसफ़े में एक्सेप्ट किया जाता है. इसको कैंट ने एक्सेप्ट किया, और कैंट ने जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया वो बाय एंड लार्ज फ़लसफ़े में एक्सेप्ट होता है. तो अब आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम फॉर गॉड है, जो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स है सारे, ये सारे एक एक करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. क्योंकि कॉजेलिटी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती तो कॉजल आर्ग्यूमेंट एस्टैब्लिश नहीं हो सकता. अब कैंट ने क्या किया था,
कैंट ने पोस्टुलेट की दूसरी रियलिटी और इसी चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया टोटली, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो ना कि दिस आया डज नॉट मेक सेंस टू मी सो देयरफॉर कुरान इज रॉन्ग, ये ह्यूम का वे है। कैंट का वे है दिस आया डजंट मेक सेंस टू मी, आई एम रॉन्ग। कैंट इसको ऐसे करते हैं, कैंट इस कॉजेलिटी को कहते हैं कि ये तो है, हम सब का एक्सपीरियंस दिखाता है कि ये है, लेकिन एम्पिरिसिज्म सही कह रही है कि इसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, देन एम्पिरिसिज्म इज इनकम्प्लीट। कैंट ऐसे आर्ग्यू करते हैं। सो वेयर डज कैंट पुट इट नाउ? ही पुट्स इट इन द रैशनल स्फेयर कि इट्स अ कैटेगरी ऑफ थॉट, whatever is experienced through causal category, and only then we can have the perception of it. We cannot have perception of anything without putting it through the category of causation. ज़्यादा डिटेल में ये कैंट में समझ आएगा. So if empiricists state that they see nothing more than antecedent and consequent incidents, then they only expose the limitation of empiricism. It's not that causality has been disproved. Causality is established. Empiricism is disproved. सेम चीज से दूसरा कंक्लूजन. कैटेगरीज ऑफ थॉट अगर हम मान ले अब 2 मिनट के लिए, तो they are not subject to experience. That's why causality is also not subject to experience. But then they can become basis of experience. जैसे Kant would prove कि space, time, ये सारी चीजें they are not experienced. They are categories of thought. So ये जो ये लिमिटेशन है एक्सपीरियंस की, एम्पिरिसिज्म की, इसको फर्दर एक्सपोज किया कैंट ने, एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एफर्ट टू प्रोवाइड एम्पिरिकल प्रूफ ऑफ causal relations is useless and futile. कहने का मतलब, अगर आप एम्पिरिकल वर्ल्ड व्यू रखते हैं तो आप ह्यूम ही तक पहुंचेंगे. देयर इज नो अदर चॉइस. जैसे हमने रैशनैलिटी पे कहा था कि जब आप रैशनैलिटी करेंगे आप शंकराचार्य पे ही पहुंचेंगे. देयर इज नो अदर चॉइस. आप पहुंचेंगे ही सुपिनोजा पे. इसमें कोई चॉइस है नहीं. और तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि दोनों थॉट्स को, इन पर्टिकुलर दिस एम्पिरिसिज्म का इट्स ए मौजज़ा. मतलब ये अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बनाया है कि जिस चीज़ को साबित करने के लिए निकले वही फाइनली डिस्प्रूव होती है. एम्पिरिसिज्म थ्राइव्स ऑन एक्सपीरियंस एंड देन इन इट्स लाइक हाईएस्ट फॉर्म लीड्स टू व्हाट, द डिनायल ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, जैसे बर्कले ने किया. इट्स मतलब क्या बोले इसको ना, वही योर डीड्स आर नलिफाइड, इट्स लाइक दैट. खैर, तो दो दो कैजुअलिटीज. एक तो पहले सेल्फ गया, अब कॉजेलिटी गई. अगला क्या जाएगा? इंडक्शन. साइंस को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं समझना कि रिलीजन को उन्होंने इतना पकड़े रखा, अब ये साइंस को भी नहीं छोड़ेंगे. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन. So now the next casualty of Hume's skepticism is induction. इंडक्शन क्या है? हम जब भी इल्म की दुनिया में हम इंडक्टिव, डिडक्टिव और एबडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं. इनमें से एक one of these is induction. Induction is the practice of drawing general conclusions based on particular experiences. कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टांसेस से आप एक जनरल ये निकालते हैं कंक्लूजन. मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ. इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ अ क्रो, यू वुड से ब्लैक. बट व्हाट रीजनिंग डिड यू अप्लाई? द रीजनिंग दैट यू अप्लाइड वाज इंडक्टिव. All the crows you have seen, particular instances of crows you have seen, they were black in color, and based on that you are saying the next crow I'll see that will also be black. Now this is induction, right? Deduction and abductive are totally different, वो फिर कभी बात करेंगे, but right now let's limit our discussion to induction. तो from a particular event you made this general conclusion. ये मेथड एम्पिरिसिज्म के लिए एसेंशियल है, साइंटिफिक मेथड के लिए एसेंशियल है. साइंस यही करती है. साइंस इज लाइक इट बिल्ड्स इट्स हाउस ऑन इंडक्शन.
that we see this is the case every time we turn it into a law. कि हमने हर बारी देखा कि द एप्पल फॉल्स, द एप्पल फॉल्स, द एप्पल फॉल्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक, हम उसको जब वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन प्रिंसिपल भी इसी पे डिपेंड करता है। व्हेन वी वेरीफाइड इट, व्हाट डिड वी डू? वी ट्राई टू सी डज इट हैपन एवरी टाइम। वेरिफिकेशन यही होता है, यू सी इसको एक बार किया, दो बार किया, 10 बार किया, एंड वी आफ्टर दैट कंक्लूड ओके इट्स गोइंग टू वर्क नेक्स्ट टाइम। आप ये दवाइयों में फॉर एग्जांपल करते हैं, दवाई में आप ट्रायल्स करते हैं। पहले हमने पर्टिकुलर इंस्टेंसेस देखे और उससे हमने डिड्यूस किया कि ये इंस्टेंस हमेशा होल्ड करेगा। बट अगर आपका इंक्विजिटिव माइंड है, आपने ऑलरेडी इसमें एक इनहेरेंट अनसर्टेनिटी देख ली होगी, बिकॉज वी मे एक्वायर न्यू डेटा समडे विच वुड बी डिफरेंट एंड विच वुड डिस्प्रूव आवर प्रीवियस कंक्लूजन्स। ऐसा हो सकता है। So essentially, the principle of induction teaches us that we can predict the future based on what has happened in the past. Hume says, which we cannot. Hume argues that in the absence of real knowledge of the nature of connection between events, हम कभी भी justify नहीं कर सकते inductive assumptions को। फलसफे में बहुत सारे philosophers गुजरे हैं जिन्होंने कोशिश की थी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी कोशिश की थी, but some argue, and the sum includes everyone. They argue that problem of induction has never been adequately resolved. ह्यूम ने इस डिस्कशन को कहाँ पे छोड़ा और खुद की राय क्या उन्होंने रखी? That we have an instinctual belief in induction, जो हमारे हैबिट्स पे फिर से डिपेंडेंट है। फिर से इन्होंने कस्टमर हैबिट को इन्वोक किया। कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता, नो लॉ एग्जिस्ट्स। वी कैन डिनाई द रिलेशनशिप विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन। फिर से वही उसूल अप्लाई कर रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन का। वी कैन नॉट जस्टिफाई एनी लॉ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो अगर आप इसको 10,000 बार भी वेरीफाई करते हैं, और साइंस में वेरिफिकेशन के बाद थ्योरी इज एक्सेप्टेड। ह्यूम इज लाइक आप इसको करोड़ों बार ये करे, वेरीफाई करे, आई वुड से कि इट वाज ट्रू इन ऑल दीज 1 करोड़ cases, but in the next case it will be true. No, 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 this we cannot say. Therefore we have no rational support for believing in science. Hume suggests that our assumptions are based on habit, not reason, and that ultimately our assumptions about matters of fact are probable. इसलिए probabilities है। अगर हमारा एक्सपीरियंस हमको ये बताता है कि दो इवेंट्स हमेशा साथ में होती थी, हम अज्यूम करते हैं लिंक उनके बीच। ह्यूम एक्सप्लेन करते हैं कि वी मस्ट बी एबल टू रिड्यूस ऑल मीनिंगफुल कंसेप्ट्स टू दिस सिंपल इम्प्रेशन ऑन विच दे आर बिल्ट। जहाँ से पहले उन्होंने अपना फ़लसफ़ा शुरू किया था कि मुझे कॉज़ैलिटी का इम्प्रेशन दिखाओ कि कहाँ से ये मेरे एक्सपीरियंस में आ रहा है। और आप ये समझ सकते हैं कि इसका कोई इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स बाय इम्प्रेशन, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन द प्रीवियस सेशन। तो सिंपल इम्प्रेशन कॉजेशन का पॉसिबल है नहीं, तो इसकी वजह से ये क्रिएशन ऑफ माइंड है, मीनिंगलेस है। लेकिन तब भी ह्यूम इसको एंटायरली डिसमिस नहीं करते। ह्यूम इनकी यूजफुलनेस को एक्सेप्ट करते हैं, बट लिमिट्स देम टू बीइंग नथिंग मोर देन सिंपल ऑब्जर्वेशंस ऑफ रिपीटेड कंजक्शन। इसके अलावा उनकी हैसियत कोई नहीं है, ह्यूम ये कहते हैं बार बार। फर्दर वो कंक्लूड करते हैं, इफ देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट then our actions are not predetermined and we enjoy true free will. तो तीसरी कैजुअलिटी साइंस, इंडक्शन। लेकिन यहाँ पे भी इफ़ यू थिंक अबाउट व्हाट ही सेड कि वी एंजॉय फ्री विल, वो कॉज़ैलिटी के बिना एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री विल का मतलब योर विल लीड टू द एक्ट यू विल्ड। फ्री विल में ये भी नेसेसरी है। फ्री विल का मतलब एक तो आपकी चॉइस टोटली फ्री है, नथिंग इम्पैक्ट्स दैट चॉइस, एंड द चॉइस लीड्स टू द रिजल्ट यू वांट टू डू, दैट्स फ्री विल। लेकिन ह्यूम के यहाँ आप कुछ भी करें, कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। तो दैट इज दैट। 3 कैजुअलिटीज होगी। अगली कैजुअलिटी, गॉड हिमसेल्फ।
अब इसको देखते हैं कि व्हाट डज ही से। देखिए, लॉक, बर्कले और ह्यूम ये मॉडर्न ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म के 3 पिलर्स हैं। इनके कंसेप्शन ऑफ गॉड में लेकिन ह्यूज डिफरेंसेस हैं, वो हमने अभी तक देखा। Yet their different conceptions of God have one thing in common, that it is based on empirical view of life. लॉक ने क्या कहा था? खुदा है, लेकिन हमें खुदा के बारे में कुछ पता नहीं। We do not know the real nature of God. Why? Because he is out of experience. If we could see him, if we could feel him, if we could touch him, we would say, okay, he is like this. That we do not have, that's why we do not know the nature of God. The very concept of God is formed in our minds. हम कैसे करते हैं? हम इमेजिन करते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स और आइडियल कंडीशंस, जैसे एग्जिस्टेंस, इन्फिनिटी, नॉलेज, पावर, प्लेजर, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें। इनके बेस पे हम एक कॉम्प्लेक्स आइडिया डिराइव करते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि ये खुदा का तस्वुर हमारे माइंड में आया कहाँ से। सो दिस एक्सप्लेन्स द मैनर इन विच द आइडिया ऑफ गॉड इज फॉर्म्ड इन आवर माइंड्स। फिर इसके बाद लॉक ये भी कोशिश करते हैं कि खुदा की एग्जिस्टेंस का प्रूफ दे, और इसके लिए वो कॉजल और टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते हैं। इंसान अपनी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकता, अपनी एग्जिस्टेंस में उसको यकीन है, और लॉक आर्ग्यू करते हैं कि ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने खुद को नहीं बनाया, दैट वी डिड नॉट ब्रिंग आवर ओन एग्जिस्टेंस। और ये आर्ग्यूमेंट कुरान में भी है। कुरान argues this, that are you your own creators? So Locke is saying we know that we are not our own creators. तो क्या हुआ? That means किसी और ने हमको बनाया। लॉक कहते हैं जिसने हमको बनाया वो खुदा है। तो सब सिमिलर फैशन में वो पर्पस की जब बात करते हैं कि पर्पस नेसेसिटेट्स कि ये जो कायनात है, इट मस्ट बी द वर्क ऑफ सम इंटेलिजेंट एजेंसी विच इज गॉड। लेकिन ये लॉक और ह्यूम, दे वर नॉट रिलीजियस पर से। Berkeley we know is from the group we are in. Like he's one with us. So he's Christian, but in this discussion he's one of us. He's taking the Christian position, and he's religious in his life as well. He's practicing Christian. He's not like Christian the way others are. In fact, हमने जब बर्कले की बात की थी, his chief object of doing all this philosophy was to what? To destroy, to counter atheism. He was in this time when atheism was like उसका वो trendy था. Everyone was like taking up कि yeah, this is the correct conception of life. And Berkeley was he was horrified कि ये क्या हो रहा है। तो वो मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकले। उनका फ़लसफ़ा करने का मकसद ही यही था। तो बर्कले लॉक का तस्वुर खुदा भी नहीं मानते हैं कि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो हमने डिराइव किया। आपने देखा उस कंसेप्ट को ही उन्होंने डिनाई किया एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के, जब हमने बर्कले पढ़ा था। येट वी हैव टू एडमिट दैट बर्कलेज अटेम्प्ट टू प्रूव गॉड ऑन एम्पिरिकल ग्राउंड्स इज़ नो मोर सक्सेसफुल देन लॉक्स। उन्होंने भी उस तस्वुर को एक्सेप्ट ऐसे ही कर लिया। वाई? हम देखते हैं कैसे किया था उन्होंने। वो कहते हैं बर्कले के हमारे अंदर जो ये सेंसेशंस हैं, उनके आइडियाज़ जो हैं, दे आर क्रिएटेड बाय गॉड। इट इज़ दिस ओनली डेफिनिशन, इट्स दिस ओनली अजम्पशन कि हमारे जो आइडियाज़ हैं, दे आर ऑर्डर्ड, दे आर डेफिनिट, सो देयर मस्ट बी समवन हु इज़ ऑर्डरिंग देम और मेकिंग देम डेफिनिट। और बर्कले ने क्या कहा था? एसे एस परसिपी, टू बी इज़ टू बी परसीव्ड, but when we are not perceiving a thing, we know that it is still existing, so there must be someone who is perceiving. We are sure it's not a human being perceiving it, so it must be God who is perceiving them. ये हमने वहाँ पे देखा बर्कले के फ़लसफ़े में।
ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये खुदा की क्रिएटेड है, बट दे आर एसेंशियली आइडियाज. So it therefore becomes necessary to imagine the existence of a divine mind in which such ideas have their existence. तो बर्कले ने ऐसे खुदा का तस्वुर एस्टैब्लिश किया by postulating him as the essential substratum of nature. अब हमको लेकिन पता है जब हमने ह्यूम स्टार्ट किया था कि ह्यूम ने बर्कले की आर्ग्यूमेंट्स को ही यूज किया टू डिस्प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस, और फिर उसी को आगे बढ़ाकर खुदा के एग्जिस्टेंस को एज ए सबस्ट्रेटम ऑफ आइडियाज रिजेक्ट किया. ह्यूम का तस्वुर क्या था खुदा का? पहले तो ह्यूम इन तीनों में से कंसिस्टेंट है, बिकॉज ही अलोन इज कंप्लीटली एडेयरिंग टू एम्पिरिकल थॉट. कि बेसिक प्रेमाइज जो एम्पिरिसिज्म की है उसको वही एक ह्यूम इज द ओनली वन हु रेस्पेक्ट्स दैट कंप्लीटली. ये कहते हैं कि खुदा का एग्जिस्टेंस हम एम्पिरिकली प्रूव कर ही नहीं सकते. हमने खुदा को कभी देखा नहीं है, फील नहीं किया है, स्मेल नहीं किया है, तो इस वजह से गॉड इज नॉट एक्सपीरियंस एंड वी कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट हिज एग्जिस्टेंस. एंड दैट्स व्हाई ही tried to refute every argument that was made in favor of such existence. And the main contention was that he pointed out that experience does not bear out whatever is contended of God. ह्यूम के लिए खुदा बिलीफ और फेथ पे बेस्ड है. हमारी जिंदगी पॉसिबल नहीं है, ह्यूम कहते हैं, कि अगर हम खुदा का तस्वुर ना एक्सेप्ट करें. एंड फॉर दैट रीजन अलोन इट बिकम्स नेसेसरी टू बिलीव इन हिम. But Hume is like, hold on. If you try to attempt to prove his existence on the basis of experience, it's a futile effort. Totally futile effort. Empirical proofs को ह्यूम ने फुल फ्लेज्ड डेवास्टेट किया. रैशनल प्रूफ्स और एम्पिरिकल प्रूफ्स को एंड रैशनल प्रूफ्स को इन पर्टिकुलर कैंट ने डेवास्टेट किया. ह्यूम आर्ग्यू करते हैं कि हम प्रूव नहीं कर सकते एक्सटर्नल वर्ल्ड की इमॉर्टैलिटी, हम प्रूव नहीं कर सकते सोल का एग्जिस्टेंस. वी कैन नॉट प्रूव एनीथिंग कंसर्निंग द नेचर, एट्रीब्यूट्स एंड पर्पस ऑफ गॉड एज वेल. रैशनल कॉस्मोलॉजी, रैशनल साइकोलॉजी, ये सब इम्पॉसिबल है. रैशनल रिलीजन इज ऑल्सो इम्पॉसिबल. तो ये रीजन को पहले रिजेक्ट कर रहे हैं. ह्यूम कहते हैं कि इंसान के पास इतना माइंड है ही नहीं, इतनी कैपेबिलिटीज है ही नहीं कि वो डिवाइन प्रॉब्लम्स के रिडल को सॉल्व कर सके, क्योंकि इसका स्कोप लिमिटेड है, फाइनाइट है. ह्यूम कहते हैं कि अपनी औकात तो देखो, तुम तो नेचर को समझ नहीं पाते, तुम पत्थर को नहीं समझ पाते, तुम निकले हो मिस्ट्री ऑफ कॉस्मोलॉजी को सॉल्व करने. खुद को देख लो पहले एक बार. व्हेन द रीजन कैन नॉट इंडिकेट कि छोटी से छोटी चीजें यूनिवर्स में आई कहाँ से, कैन इट पॉसिबली मेक एनी एक्सेप्टेबल गेसेस कंसर्निंग द ओरिजिन एंड पर्पस ऑफ द वर्ल्ड. ह्यूम से नो, अकल जा ही नहीं सकती इतना आगे. ह्यूम कहते हैं कि द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड इज लॉस्ट, वी डू नॉट नो इट, वी कैन नॉट नो इट. एक इनफाइनाइट पास्ट है जिसमें एक खत्म हो गया, और फ्यूचर इज ऑल्सो इक्वली आउट ऑफ रीच ऑफ आवर फाइनाइट माइंड्स. हमारे माइंड्स सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत प्रेजेंट को समझ सकते हैं और इमीडिएट पास्ट को, इसके अलावा कुछ नहीं. जो माजी में खो गया, जो मुस्तकबिल में है आपकी ग्रास्प में नहीं है. You'll only get what is in the present. Obviously, the human mind cannot even be expected to make any rational conclusions concerning the omnipotent, omniscient, infinite and unqualified God. ये सारे out of experience है. We cannot make any comments on that. इसके आगे फिर ह्यूम बढ़ते हैं और कमेंट करते हैं जो ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट्स है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. इनमें से पहले वो टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं.
Teleological argument में the existence, the intelligence, the goodness of God is argued from what? From the very organization or the system of the universe. इसकी खूबसूरती, इसकी goodness, इसका purpose driven होना. तो इसके basis पे हम conclude करते हैं the existence of God. ह्यूम कहते हैं कि totally unjustified argument है ये. ह्यूम कहते हैं कि कायनात की क्रिएशन को हम कंपेयर नहीं कर सकते जो ह्यूमन क्रिएशंस हैं उनके साथ. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, शिप्स, फर्नीचर एंड ऑल. So when we say that these things could not have come into being without the human putting in his effort, how can we say the universe could have come into being without God putting in his effort? So Hume says कि ये comparison unjustified है because although the two acts of creation appear to be similar, yet they are different in big aspects कि हम उसको ignore नहीं कर सकते. कहते हैं while some of the processes of nature reflect the functioning of reason, many other processes contradict such an impression. If any thought or purpose had guided the creation of the universe, then such things as heat, cold, gravitation, etc. cannot be explained on the basis of thought or reason. The laws of human life, they differ from the laws of animal life. The laws of animal life, they differ from the laws of vegetable life. And those of vegetable life, they bear little resemblance to those of rocks and mountains and material things. Hence, the purpose one discovers in human life is not true for most of the other beings. We do not see a purpose in a rock, we do not see a purpose in a vegetable, we do not see a purpose in any of these things except ours, and we are a very tiny fragment of all. There is little parallel between the creation of human life and the creation of rest of the universe. तो इस बलबूते पे it's unwarranted to conclude that just as we can deduce the existence of human intelligence from the nature of things created by it, we can deduce the existence of God from the fact of universal existence. ह्यूम कहते हैं कि खुदा को इंसान से कंपेयर ना करें. इसके बाद, एंड इट्स अ बेटर आर्ग्यूमेंट, ह्यूम आर्ग्यूज कि the part cannot comment on the whole. The whole cannot be decided on the basis of the part. तो जो हमने इससे पहले भी पिछले आर्ग्यूमेंट में बात की, इससे क्लियर होगा पहले तो, और ये वैसे भी क्लियर ही है कि ये जितना भी हम आर्ग्यू कर रहे हैं, जितना थॉट, जितना रीज़न, जितना पर्पस हम डाल दें, these are only part of creation. Hence, they cannot be used as an analysis for the entire creation. Nothing in the human world can rival the entire world. And the two differ to such a great extent that one cannot be used as a basis for making deductions concerning the other. आगे कहते हैं ह्यूम, इस पे सोचेगा, इट्स ए वेरी गुड आर्ग्यूमेंट कि हम होल को, ये सॉरी, पार्ट को देखकर होल को जज कर रहे हैं. आगे कहते हैं कि the human mind and God's mind are two different things. God does not resemble the human mind. अगर हम तस्वुर खुदा ऐसा रखते हैं कि his mind is similar to human mind, or if we believe in God and we try to trace any similarity between man and God, it would be fallacious because they are fundamentally different. Man's mind is subject to change, but a perfect God, he is not guided by whims and fancies, and he is not subject to change. So what happens to us, what we, the kind of feelings we have based on them, we cannot deduce God. Entirely different thing. Hume argues that the nature of God cannot even be deduced from the nature of creation. Because once again, the nature of universe is very different from the nature of God. Creation is not perfect, but God is perfect. If we were to deduce a God from creation, creation is not perfect, God too is imperfect. So we should be saying God is imperfect. But to believe in an imperfect God is a contradiction.
ह्यूम फर्दर कहते हैं कि अगर हम माने भी कि गॉड इज परफेक्ट, even then there is no reason to believe that the creator possesses the qualities he infused in the world. ये रैशनली एस्टेब्लिश ये भी नहीं हो सकता। कहते हैं कि अगर हम कायनात को ध्यान से देखें, देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ कंसिडरेबल फेलियर, वेस्टेड एफर्ट, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड एन एक्सट्रीमली स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट। ही आर्ग्यूज हम सदियों और लाखों सालों से इस कायनात में हैं और अब हम थोड़ा थोड़ा करने लगे हैं कुछ। इफ ओनली इट पॉइंट्स आउट टू अ गॉड हु वाज इनकेपेबल। तो ये बेसिस पे ये टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर गॉड एज द सोल ऑफ द यूनिवर्स, सुपरनोजिक कंसेप्ट ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल कंसेप्ट ऑफ गॉड। कुछ लोग कुछ लोगों का तस्वुर खुदा ऐसा है कि यूनिवर्स को वो देखते हैं एज ए ऑर्गेनिज्म एंड गॉड इज द सोल ऑफ दिस लिविंग बीइंग, द यूनिवर्स। इनके हिसाब से यूनिवर्स शुड बी कंसिडर्ड एनालॉगस टू सम लिविंग ऑर्गेनिज्म द वे वी आर। हम इसको मैकेनिकल वॉच की तरह ना देखकर एक जिंदा चीज़ की तरह देखें, एंड देन वी कैन कंसीव कि ऑफ दिस लिविंग थिंग गॉड इज द सोल। Hume's only comment to all such conception is वो उसको फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन कहते हैं बाय द वे, कि we cannot prove the accuracy of such beliefs on the basis of our experiences because our experience is limited and imperfect, incapable of suggesting anything perfect. लेकिन इसके बावजूद ह्यूम पॉइंट आउट करते हैं कि इट इज़ बेटर टू कंसीव ऑफ गॉड एज अ सोल ऑफ द यूनिवर्स which is a living being than imagining God as the creator of a mechanical instrument, because the structure of universe is similar to living entity than to a mechanical one. तो कहने का मतलब जो रैशनल स्कूल्स एस्टैब्लिश करते हैं फाइनली वहदतुल वजूद, ह्यूम सेज कि खुदा का सबसे बेहतरीन तस्वुर अगर कोई है तो यही है, लेकिन ये तस्वुर भी गलत ही है। फिर ये रिफ्यूट करते हैं मॉरल आर्ग्यूमेंट को। कुछ फिलोसफर्स इसमें यकीन रखते हैं कि गॉड इज द कॉज ऑफ मोरालिटी इन द वर्ल्ड। तो ह्यूम आर्ग्यू करते हैं कि ये वाला भी जो कहना है कि इट्स आल्सो नॉट सपोर्टेड बाय एक्सपीरियंस, और हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि गॉड इज एन एंटिटी पोजेसिंग मॉरल क्वालिटीज सिमिलर टू मैन्स मॉरल टेंडेंसीज। If one examines this aspect carefully, one will discover that the purpose of nature in all cases is the preservation and propagation of all species, not their individual happiness. There is more pain than pleasure in the world. The existence of so much pain and suffering in the world would suggest that the creator of the world is not benevolent or that he is not omnipotent. Physical and moral suffering, sins and pains do not warrant the assumption of God as being good. फाइनली ये ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हैं। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो खुदा के तस्वुर को एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स इफ वी से a perfect God does not exist. Because if he does not exist, then he is not perfect. So, hence the existence of God is inevitable outcome of his very nature, which is perfection. So, God is perfect, and an existing God is much more perfect than the God that does not exist. His saint, it's attributed to Enslaved, but then there are arguments that it existed elsewhere as well. फिर इसको रिफ़ाइन होते हुए बहुत सारी रिफ़ाइनिंग इसकी हुई है और फाइनली आज तक ये रिफ़ाइन करते आ रहे हैं। विलियम लेन क्रेग या विलियम क्रेग लेन व्हाटएवर, उन्होंने इसको फिर से ज़िंदा किया, ही रोट ऑन इट। उससे पहले इब्न सीना ने भी इसको इस्तेमाल किया एंड लॉट ऑफ पीपल हैव टॉक्ड अबाउट इट। लेकिन इट सीम्स टू मी, आई डू नॉट नो व्हाट न्यू आर्ग्यूमेंट्स दे हैव प्रेजेंटेड, बट आई पर्सनली थिंक दैट डिस्कशन एंडेड विद कैंट्स क्रिटिसिज्म ऑफ इट।
लेकिन ह्यूम क्या आर्ग्यू करते हैं? ह्यूम आर्ग्यू करते हैं हमको नेचर ऑफ गॉड पता ही नहीं है। हाउ कैन वी आर्ग्यू अबाउट हिज एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज नेचर, दैट ही इज अ परफेक्ट गॉड? हमको यही नहीं पता है। द नेचर ऑफ गॉड वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट deduce his existence on the basis of his nature. Hume further adds to it कि it's the practice, it is the feeling, it is the heart which is the basis of religion. It's not reason which is the basis of religion. ये कह के ह्यूम हर एक आर्ग्यूमेंट जो खुदा का एग्जिस्टेंस प्रूव करने की कोशिश कर रहा था इंटेलेक्चुअल और रैशनल ग्राउंड्स पे, वो सही नहीं है ह्यूम के हिसाब से। ह्यूम साबित करते हैं, ही थिंक्स दैट ही हैज डन इट, कि हमारा जो खुदा का तस्वुर है ये बेस्ड ऑन फेथ ही हो सकता है। ये कहते हैं कि इट कैन बी अ मैटर ऑफ फेयर, इट कैन बी अ फेयर ऑफ डेथ, it can be desire of happiness, it can be tendency to fulfill all kinds of physical and psychological needs, but it can never be rational. ह्यूम आर्ग्यूज कि जो हमारे अंदर तस्वुर खुदा है ये हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स से ज़िंदा होता है। लेकिन फिर से वही जो मैंने पिछली बारी बात की, कि कुछ देर पहले जो मैंने बात की, कि यहाँ पे लेकिन साइकोलॉजिकल नीड्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स ऐसा नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि अगर साइकोलॉजिकल नीड हमारे अंदर है दैट मीन्स उस नीड को फुलफिल करने वाली चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। So, man believes in God because he finds something lacking in his life. And oh my God, Hume is right when he says this, that we miss something if we do not accept God. He says that man likes to hope that this shortcoming will be removed by some agent. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलीथियज्म एटसेट्रा ये सब भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ह्यूम। इनफैक्ट ओल्डेस्ट रिलीजन वो इसी को मानते हैं। इस सब से हमको ये भी पता चलता है कि ह्यूम दो स्केप्टिक, हम उस पर बात करेंगे वॉज ही स्केप्टिक और नॉट, बट ही वाज नॉट एन एथिस्ट। नाउ अ पैरेलल विद मी नाउ, जो मैं कह रहा था कि मेरी पोजीशन आप बहुत समझ पाएंगे अगर आप ह्यूम को समझ पाते हैं। ह्यूम वाज हिमसेल्फ नॉट एन एथिस्ट, he recognized the need of faith in the existence of God. ये कहते हैं कि हमारे अंदर ये फीलिंग्स हैं कि चीज़ों में पर्पस है और उसको रिजेक्ट नहीं करते। और वो कहते हैं कि इस बलबूते पे हम इस चीज़ पे यकीन भी कर सकते हैं कि पर्पस है एक्चुअली। लेकिन ह्यूम फिर कहते हैं यहीं पे रुको, इससे आगे निकलने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है इस फीलिंग को जस्टिफाई करने की ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल ग्राउंड्स। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू से। कोई ज़रूरत नहीं है इसको जस्टिफाई करने की, इससे आगे हम सब इस पे एक्सेप्ट करते हैं। कुछ फिलोसफर्स, कुछ हिस्टोरियंस ऑफ फिलोसफर्स यहाँ इस पहलू पे आकर कहते हैं कि ह्यूम इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ह्यूम के अंदर खुदा और मजहब के बारे में इनकंसिस्टेंसीज हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये खुदा की एग्जिस्टेंस को एट वन मोमेंट मानते हैं, बट देन ही कीप्स ऑन डिस्प्रूविंग हिज एग्जिस्टेंस। लेकिन आपने देखा होगा कि ये व्यू ऑफ ह्यूम कंसिस्टेंट नहीं है। ह्यूम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ही इज नॉट disproving the existence of God. He is disproving the proofs of God. कि जो प्रूफ आपने दिए ये प्रूफ गलत है, खुदा तो है। His sole purpose in attacking the traditional arguments in favor of existence of God is to point out that the conception of God is not based on reason, it's not based on experience, it's based on the very requirement of being human. और ये चीज़ उनको थियज्म में शायद और भी ऊंचे लेवल पे ले जाती है। इनके लिए इट इज़ फ्यूटाइल टू प्रूव द रियलिटी ऑफ गॉड। इनके लिए अल्लाह ताला पे यकीन रखना इंसान के होने का ही हिस्सा है, ये उसकी साइकोलॉजिकल और वॉल्यूशनल एस्पेक्ट्स के लिए नेसेसरी है।
मज़हब ह्यूम के लिए इमोशन पे मबनी है, इस विल पे बेस्ड है। और ह्यूम कहते हैं कि बाकी ह्यूमन नॉलेज की तरह रिलीजन भी दिखाता है साइंस ऑफ एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, एंड हेंस religion should be analyzed not from rational standpoint, from historical standpoint it should be analyzed। यहाँ पे आपको ह्यूम के अंदर का वो छोटा मोटा जो हिस्टोरियन है, दो कि ही वाज अ गुड हिस्टोरियन, 6 वॉल्यूम पे इन्होंने 6 वॉल्यूम की किताब है इनकी। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं